So this is income tax. In the previous class, I have uploaded the theory of Unit 1 introduction, but I did not get the response from the students whether they like my video or not. No comments, no subscribers increases. So are you interested or not? Just comment me. Now today I am starting the problems of Unit 1. This is from page number A80, short problems. Compute the tax liability in the following cases assuming the individual wishes opt under default tax regime 115 BAC. Default tax regime means I already told you have to remember the page numbers. This is A36 for the normal slab rate. For default, page number A33. This is the table you have to use while doing the problems. So in the question, problem number 1, default tax regime, we have to find this, solve these 3 bits. So we have to follow this table, page number A33. First 3 lakhs is nil. 3 lakh to 6 lakhs 5%, 6 lakhs to 9 lakhs 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, 15 lakh and above if the income of the SSC is there 30%. So this table we have to follow for the default tax regime. अपने को प्रॉब्लम नंबर 1 में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मीन्स पेज नंबर A33 का टेबल आपको याद रखना है. इसमें बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख रुपीज है स्टार्टिंग. देन आफ्टर दैट 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख अगर एसएससी की इनकम है तो 10%, लाइक दैट 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो 30%. ये अपने को रूल फॉलो करना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के प्रॉब्लम्स में. इफ़ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन तो अपने को अब यही देखना है. सो फर्स्ट बिट मिस्टर रंजीत एज 67 ईयर है. तो ये प्रॉब्लम जब अपन डिफॉल्ट का करते हैं तो अपने को एसएससी की एज नॉन सीनियर सीनियर अपने को ज़रूरत नहीं है. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्लैब रेट सीनियर नॉन सीनियर. Basic exemption is different there, but in these problems basic exemption 3 lakhs for all the SSCs, whether non-senior, senior or super senior, basic exemption is 3 lakh. That you have to remember. So ignore of the age in these problems. So now it's clear with the question. A bid Mr. Ranjit, an SSC 60 years resident of India having income 8,64,000. सो मिस्टर रंजीत को 8,64,000 उनकी इनकम है. सो हाउ मच टैक्स ही हैज़ टू पे, दैट इज द क्वेश्चन. अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अपने को कैलकुलेट करके बताना है कि उनको कितना टैक्स पे करना है. ये बी सी डिफरेंट है, ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सेपरेटली फॉर दिस एसएससी. उसके बाद बी बिड मिस्टर राकेश की इनकम 12,30,000 है, उनका अलग मालूम करना है. मिस्टर राजेश की उम्र 80 ईयर्स है, उनका अलग मालूम करना है. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. नाउ in this way how I am presenting the answer, in this way you have to present, you will get the full marks in the exam. So what this is the page number 80 short problem. Default tax regime under section 115 BAC we are calculating. Okay, calculating taxable income whose Mr. Ranjit is our SSC income 8,64,000 resident of India. So under default tax regime you have to write this note. The SSC respective of residential status and age basic exemption is 3 lakhs. Already I showed you. Now this is the 4 columns you have to prepare. Income slab, income, tax rate, tax amount. So first 3 lakhs is the basic exemption under this new tax regime. Tax rate will be nil, tax amount will be nil. If the income of the SSC is 3 lakhs then he has to pay no tax. 3 lakhs to 6 lakhs, what is the difference? this 3 lakh से 6 लाख तक की इनकम अगर उनकी है, 3 लाख से बढ़ जा रही है अगर उनकी इनकम 6 लाख तक, तो कितना डिफरेंस आया वो 3 लाख. 3 लाख पे उनको 5% ऑन 3 लाख. द डिफरेंस ऑफ दिस 3 lakhs 1 to 6 lakhs is 3 lakhs. No, on this 3 lakh he has to pay 5% interest. So on this you have to calculate interest. 3 lakhs into 5%, 15,000. See here, 3 lakhs into 5%, 15,000. In the same way 6 lakhs to 9 lakhs in our table 6 lakhs to 9 lakh, but our SSC income is 8,64,000 only. No, so we have to stop here only. 6 lakhs 1 to balance, no need to write 9 lakh here so that you will get confused. So 6 lakhs 1 to balance. So balance means here 8,64,000 total is there. So 6 lakhs to 8,64,000. How much amount is there? In this way you will get it. 8,64,000 is the total amount.
From there you have to minus 6 lakhs. 2,64,000 balance. This total 8,64,000 is total. From there we have to deduct this 6 lakhs. By 6 lakhs 1 to balance, you will get 2,64,000. It's clear? Now 10% on this. In this table it has given no 10%. So 2,64,000 into 10%, 26,400. So the tax amount is 41,400. Tax rebate is not there. Every SSC has to pay health and education tax. Cess, not tax, cess. It is compulsory. Health and education 4% on this taxable income. So 41,400 into 4%, 1656. Okay. Now you have to add, you will get 43056. Now rounding of figure, this will become 56, will become 60. So tax liability, this Mr. Ranjit has to pay 43,060 rupees under new tax regime, default tax regime he has to pay. It's clear? Once again I will repeat it. The SSC is Mr. Ranjit, 66 years के है, उन्होंने रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 8,64,000 है. ठीक है. जब अपन को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन में पूछे तो आपको एज और रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना है, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक एग्जामिशन 3 लाख है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में. इट्स क्लियर? नो. नाउ यू हैव टू मेक 4 कॉलम्स फॉर दिस. इनकम स्लैब फर्स्ट 3 लाख इनकम उनकी अगर है तो नील रहता टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट. 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम कितना गैप होता, 3 लाख को छोड़ देना है. ठीक है. 3 लाख से 6 लाख तक कितना अमाउंट होता, 3 लाख बचता. 3 लाख का 5% 15,000. फिर 6 लाख से अपने को टेबल में कितना है, 9 लाख है. ठीक है. अपन क्वेश्चन में देख के ये टेबल में अपने को कहाँ तक जाना है अपन डिसाइड करना है. ठीक है. अगर एसएससी की इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो अपने को यहाँ तक आना पड़ता. अब यहाँ पर 8 लाख तक ही, 9 लाख से कम है तो अपने को यहाँ पर स्टॉप कर देना है 10% तक ही. इट गॉट द आइडिया? ये टेबल पूरा यूज नहीं होता, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. अपने को बेस कितनी इनकम है एसएससी की उसके ऊपर, अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो अपने को यहाँ तक जाना पड़ता 30% तक. ठीक है. अगर 5 लाख से है उनकी इनकम तो 5% यहाँ तक ही अपने को 2 नहीं लेकर आता, 5% का एक कॉलम आता. सो बेस्ड ऑन द information of the income of the SSC given to us, that you have to use this table. So अपने को यहाँ पर 2,64,000 ये बैलेंस कैसा आता, सी हियर केयरफुली. यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना. 3 लाख तो एग्जेम्प्टेड है, ये 3 लाख से 6 लाख तक है, 3 लाख होता. अब अपने को यहाँ पर ये टोटल डाल लेना, 8,64,000. डालने के बाद ये 6 लाख को माइनस कर देना, दैट विल बिकम बैलेंस. इट्स इजी नो. ठीक है. दिस विल बिकम 8,64,000 है. ये दो अमाउंट को ऐड करो आप, 6 लाख होता. 8,64,000 में से 6 लाख को माइनस करो, या बैलेंस आ जाता. ये बैलेंस पे उनको 10%, यहाँ पर 9 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने एसएससी के जो क्वेश्चन में दिए 8,64,000 ही उनकी टोटल इनकम, वो यहाँ पर डाल लेना है आपने. तो इस 2,64,000 का 10% 26,400 हो गया. ये दोनों को ऐड करें तो टैक्स अमाउंट उनका 41,400. टैक्स रिबेट नहीं है इसमें. ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सबके लिए कंपलसरी रहता. तो टैक्सेबल इनकम जो भी आ जाती उसके ऊपर 4% अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना रहता. ठीक है. 41,400 में 4% निकाले तो 1656 आया. 43056, इसको राउंड फिगर करे तो अपने को 43060. अगर समझो यहाँ 54 रहता तो 55 से ज्यादा, अगर 55 भी रहा तो उसको राउंड फिगर करके 60 कर लेना है. सो टैक्स लायबिलिटी इज 43,060 रुपीज फॉर मिस्टर रंजीत. ओनली 1 बिट वी हैव फाइंड आउट. सेकेंड बिट में क्या है अपने को, बी बिट में मिस्टर राकेश है, 45 ईयर्स एज है उनकी, 12,30,000 है. 12 लाख वो तो अपने को 30,000 बोले तो यहाँ तक जाना है, 20% तक आना है अपने को. 12 लाख से ज्यादा इनकम है तो अपने को 20% तक आना है. इट्स क्लियर नो. नाउ सी हियर, मिस्टर राकेश एज इन दिस वे सेम यू हैव टू प्रेजेंट इनटू द एग्जाम. Mr. Rakesh, age 45 years, income 12,30,000. SSC, irrespective of age, basic exemption is 3 lakhs rupees. That you have to write. 4 columns you have to make. First 3 lakh nil. Our tax amount also nil. 3 lakh to 6 lakhs, difference you have to take 3 lakhs. 5% 15,000. 6 lakhs to 9 lakhs. In that problem, a bit 8 lakh, that's why we didn't use this 9 lakhs. But here income is more than 12 lakhs. So we have to write 6 lakhs 1 to 9 lakhs. What is the difference again? 3 lakhs difference.
10%, 30,000 you will get it. Then 9 lakh 1 to 12 lakhs, अगेन डिफरेंस इज 3 lakhs, 15%. जैसा जैसा इनकम बढ़ते जाएंगी टैक्स रेट उनका बढ़ते जाता. सो 45,000. 12 lakh टू बैलेंस. अब 12 lakh से 15 lakh तक तो नहीं है, 12 lakh 30,000 इनकम है. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन द टोटल. आई डिडंट रोट 12 lakh 30,000, you have to write it here. Now you see 3 lakh 3 lakh 3 lakh 12 lakhs. 12 lakhs minus this, you will get this balance 30,000. 30,000 you have to calculate 20%. 6,000. Now add all this, you will get 96,000. Tax rebate is not income tax, 96,000. Tax rebate is nil. Health and education tax on this 96,000, not 12 lakh 30,000. ये जो टैक्स का जो अमाउंट अपन मालूम करते हैं, on that you have to calculate. So 96,000 into 4%, we are getting 3840. I'll show you 96,000 into 4%, 3840. Now you have to add this 96,000 in that, you will get 99,840. So Mr. Rakesh, whose income is 12 lakh 30,000, he has to pay the tax to the government 99,840. It's clear no? मिस्टर राकेश 45 ईयर्स एज है उनकी, 12 लाख 30,000 इनकम है. तो यहाँ पर अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर रहे हैं, तो अपने को एज कंसिडर करना नहीं है. 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन रहता नील. उसके बाद 3 लाख से 6 लाख अगर जिसकी भी इनकम रहती है, 3 लाख इनकम पे 5% पे करना है. 6 लाख से 9 लाख कितना डिफरेंस आ रहा, 3 लाख, उसके ऊपर 10%. 9 लाख से 12 लाख, 3 लाख इनकम 15% देना. 12 लाख से अगर बढ़ जा रही तो 20%. तो 12 लाख से इनका कितना इनकम बढ़ रहा, ओनली 30,000 इंक्रीज हो रहा. टोटल 2,30,000 था, 12 लाख तक पे कर दिया उन्होंने टैक्स, और कितना अमाउंट बच रहा, 30,000 बच रहा. तो वो 30,000 पे 20% यहाँ पर अपने को टैक्स अमाउंट मालूम हो जाता. इनकम टैक्स 96,000, टैक्स रिबेट नहीं है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 96,000 का 4% ऐड करना रहता. कंपल्सरी यू हैव टू ऐड दैट. इट विल नॉट गिवन यू इन द क्वेश्चन में नहीं रहता, आपको याद करना है. इन ये टैक्स अमाउंट जो भी आ जाता आपको उसके ऊपर 4% ऐड करना है कंपल्सरी. देन आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट द टैक्स लायबिलिटी 99,840. Now C bit, 3 bits are given in the first problem now. So C bit is Mr. Rakesh, again 80 years age is given, non-resident, having an income of 18,72,000. Now see the table. 18,72,000 means 15 lakh and above. No, till here we have to do the problem. Till 30% we have to do the problem. आर यू गेटिंग. अपन पहले प्रॉब्लम में 10% तक ही करें, फिर 20% तक ही करें. अब ये प्रॉब्लम में 30 क्यों कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द इनकम गिवन ऑफ द एसएससी. जिसकी इनकम जैसा रहेंगी वो अपने को हिसाब से ये टेबल को देखना रहता. नाउ मिस्टर राजेश एज 80 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट, यू हैव टू राइट. Then SSC respective of residential status and age, basic exemption 3 lakh. 4 columns बनाना है. फर्स्ट स्लैब 3 लाख नील नील. 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख डिफरेंस होता 5%, 15,000. 6 लाख to 1 to 9 लाख, 3 लाख अगेन डिफरेंस, ये डिफरेंस 10%. फॉर 3 lakhs into 10%, 30,000. Then 9 lakh to 12 lakh, 3 lakhs again the difference will be 3 lakhs, 15%, 45,000 you will get it. 12 lakh to 15 lakh, again difference will be 3 lakh, 20%, 60,000. अब यहाँ पर आने के बाद एसएससी की इनकम कितनी है, 15 लाख से ज़्यादा है, 18,72,000 है. सो 18,72,000 में ऑलरेडी अपन 15 लाख तक कवर कर दिए. ठीक है 18,72,000 टोटल इनकम है उनकी. 15 लाख अपन जो है सो अभी तक देख लिए. सो 15 लाख, 3,72,000 बैलेंस आ रहा. गेटिंग द बैलेंस हियर ओनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू द मिस्टेक. ये बैलेंस कैसा आता, ठीक है. टोटल 18,72,000 है, अपन 15 लाख तक कैलकुलेट कर लिए ना उनकी इनकम. तो 18,72,000 में से ये 15 लाख को माइनस करना. ठीक है, 18,72,000 माइनस 15 लाख, 3,72,000. 30% वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दिस इंटू 30% बेस्ड ऑन द टेबल. यू हैव टू रिमेंबर द टेबल. 1,11,600. Now add this all, you will get income tax 2,61,600. Tax rebate is nil. 4% on this 2,61,600, 4%. So after adding health and education says 2,72,064. 64 is there, less than 5 no. So 60 we are taking rounding figure. So tax liability Mr. Rajesh has to pay 22,72,060 rupees.
इट्स क्लियर. वंस अगेन आई रिपीट इट. मिस्टर राजेश एज अपने को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में कर रहे हैं, अपने को एज कंसीडर नहीं होती है. बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख है. नाउ एसएससी की इनकम 18,72,000 है, तो अपने को 15 लाख से अबव पूरा लास्ट 30% तक का टेबल तक जाना है अपने को. सो 3 लाख फर्स्ट 3 लाख को नील रहता टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट. 3 लाख 1 से 6 लाख तक 3 लाख रहता 5%, 15,000 आया. 6 लाख 1 से 9 लाख जिसकी इनकम है 3 लाख डिफरेंस पे उनको 10% पे करना रहता. 9 लाख 1 से 12 लाख जिसका है 3 लाख डिफरेंस होता, 15% पे करना उनको 45,000 होता. ये 3 लाख पे निकालना, ये पूरा 3 लाख पे निकालना है अपने को परसेंटेज. देन 12 लाख से 15 लाख तक 3 लाख डिफरेंस होता 20%. अब यहाँ पर आने के बाद 15 लाख 1 से अपने को क्वेश्चन में जो एसएससी की इनकम है वो यहाँ पर लिख लेना है 18,72,000. ये 18,72,000 में से 15 लाख माइनस कर दो, यू विल गेट बैलेंस 3,72,000. ये 3,72,000 बैलेंस पे उनको 30% पे करना है. इट्स क्लियर. ये 3 लाख नहीं आता, 3,72,000 आता, उस पर उनको 30% पे करना है. सो 1,11,000 वी आर गेटिंग. 3,72,000 पे उनको 30% करे तो 1,11,600. नाउ आफ्टर एडिंग दिस 2,61,600 टैक्स अमाउंट है उनका. उसके ऊपर जो है सो टैक्स रिबेट नहीं है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कंपल्सरी है. ठीक है, कंपल्सरी. सेस मीन्स इट इज स्टैट्यूटरी, कंपल्सरी वी हैव टू पे. ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है ना इन गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में लेके अपने को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो भी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट के जो चलते ये 4% का ये अमाउंट कलेक्ट करके वो लोग वो स्कूल्स को मेंटेन करते. सो एवरी हर गवर्नमेंट में जो है सो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपल्सरी रहता. हर एसएससी जिसकी भी इनकम जितनी रहती वो लोग को 4% पे करना ही रहता टैक्सेबल अमाउंट पे. उनके ये टैक्सेबल अमाउंट पे डिपेंड रहता, जिसकी इनकम जितनी रहेंगी उनको उतना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे करना रहता. इट्स क्लियर. नाउ द टैक्स लायबिलिटी इज 2,72,060 रुपीज. दिस मिस्टर राजेश हैज टू पे.